Okay. Now when you say Maths 1, Maths 2, now why there are two separate papers? Maths 2 जो है, it is full of statistics. Statistics word सुना है हमने? हमने heard the word statistics. कितना जन ने पढ़ा है statistics? कुछ तो ऐसा word सुना है, पढ़ा है हमने. Okay, good. 10th तक भी दो पार्ट था ना मैथ्स में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐसा था. हाँ. एंड वहां पर यू स्टडीड ज्योमेट्री में थियरम, प्रूफ्स एंड ऑल, है ना, राइडर्स, कॉन्वर्स, स्टेटमेंट्स. हाँ, अच्छा लगता था, नहीं लगता था? मिक्स्ड ओपिनियन है. एनीवे, as far as your 11th commerce is concerned, yeah, 12th commerce is concerned, there is no geometry. So good. तो थियरम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना थियरम का प्रूफ करने की जरूरत है. नो ज्योमेट्री. As well as another thing which normally students don't like was something like trigonometry was there. How many like trigonometry? दो तीन लोग हाँ बोल रहे हैं, पीछे एक दो जन है. There is no trigonometry also. So no trigonometry, no geometry. तो आप बोलोगे सर फिर हम पढ़ेंगे क्या? तो आप पढ़ोगे statistics and there is in this part we have you can call it as maths which is related to calculus and general maths. यहाँ पर statistics plus commercial maths पढ़ेंगे हम. Now, so today we will talk of paper 2 only. So statistics is one part in paper 2 and the other part is commercial maths. What is the meaning of commercial maths? Business related maths. So business की जो maths है वो यहाँ पर आएगा, मैनेजमेंट की maths यहाँ पर आएगी. मैनेजमेंट मतलब बिजनेस करने में जो maths काम आता है. Like suppose you are manager of a very big company. You can be or you cannot be. Can be, हाँ. Or you are father is having a business. तो बोलता है भाई आजा मेरा बिजनेस में थोड़ा हेल्प कर दे मेरे को. तो मालूम पड़ा तेरा 7-8 काम है और लोग हैं आपके अंडर काम करने के लिए. तो whom to give which work? That requires दिमाग का काम और randomly you'll say जो मांगता पिक कर लो, बुफे है. ऐसा बोलेंगे कि सोच समझ के देंगे? सोच समझ के देंगे ना. क्या सोचेंगे हम काम देने से पहला? हाँ, उनके अंदर की काबिलियत देखेंगे. और whom will I give which job? किसको कौन सा काम देगा हम? हाँ, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग. समझो ना, सब लोग इक्वली क्वालिफाइड है एंड सब लोग काम कर सकते हैं, सब लोग सब काम कर सकते हैं. 5 काम है, 5 लोग है and everybody can do all the 5 jobs. ऐसा स्कूल में सब सब्जेक्ट तो कंपलसरी था ना, भले आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एग्जाम तो 5 पेपर का लिखना पड़ता था ना. कि हाँ कि कुछ ऑप्शन था? 5 का ही बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग 7-8. तो 5 तो मिनिमम पेपर कंपलसरी था, सबको सभी पेपर लिखना था. तो वेर एवरीबडी अवेयर ऑफ ऑल द पेपर्स? वॉज एवरीबडी अवेयर ऑफ मैथ्स, science, English, social studies? So everybody knew everything. So like that it is. So whom to give what? तुम्हारा टीचर को ऐसा 5 काम देना है, 5 बच्चे हैं, 5 सब्जेक्ट मालूम है, तो किसको कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए? How will the teacher apply her mind and give? जिस सब्जेक्ट का टॉपर है, बोला तू बोल कौन सा टॉपर है. क्यों टॉपर पहचानेंगे हम भाई? क्यों हमको टॉपर चाहिए? वो अच्छे से कर सकता है और they will be able to do the job fast. You like maths and you got maths. Will it take more time or less time? Somebody likes social studies, got social studies, they are happy. But you like maths, you got social studies. He likes my social studies, he got maths. You are also crying, they are also crying. Neither you are starting, they are starting. तो टाइम वेस्ट हो गया. तो दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई ये काम किसको मैं दूं
so that I am able to do the work in a smallest possible time or largest possible time. हाँ, ये एक टेक्निक है. So all those which you study in MBA, जैसा बोलते हैं असाइनमेंट सीक्वेंसेस, वो यहां पर पढ़ेंगे. नॉट फुल MBA कोर्स, एक दो टॉपिक वहां का पढ़ेंगे. इंटरेस्टिंग. तो that is the understanding. So now we will start with today का discussion. The first part, what is our first part of our discussion? Statistics. तो statistics की बात करेंगे हम. So that is our discussion today. As you said, sir, हमने सुना है statistics word के बारे में. So what do we understand? Or what you studied in statistics? ये बोलता है मीन मीडियन मोड पढ़ा मैंने. टॉपिक का नाम बोल रहे हैं. क्या हो गया इतना? ऐसा 2-3 महीने में सब डिलीट हो गया क्या? 2-3 महीना इतना छुट्टी मनाया कि जो पढ़ा सब गायब हो गया. हाँ बोलिए. ही सेड मीन मीडियन मोड. टॉपिक का नाम बोल रहे हैं. और प्रोबेबिलिटी. ओके. बाइफर्केशन ऑफ डेटा. और अच्छा चलो, जो भी पढ़ा आपने स्टैटिस्टिक्स में, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हुआ क्या स्टैटिस्टिक्स में? आपके प्रैक्टिकल जिंदगी में? अरे जिंदगी मतलब आपका पर्सनल लाइफ. स्टैटिस्टिक्स यूज हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये क्या तुम आंसर हाँ ना नहीं बोलते हैं क्या? ऐसा कुछ स्कूल में हाँ ना बोलने का ऐसा रीति रिवाज नहीं था. यू हैव टू आंसर नो. आई हैव टू नो यू आर लिसनिंग और नॉट. मालूम पड़ा आई एम टॉकिंग, यू आर सेइंग व्हाट इज ही टॉकिंग. If you say yes, no, then I'll know what to change. हाँ बोलिए. यूज किया कि नहीं किया पर्सनल लाइफ में? हाँ अभी कुछ आवाज आ रहा है ना ऐसा. हाँ ऐसा आपको टाइम लगता है, ऐसा वार्मिंग अप जैसा है. हाँ आप बोल रहे नहीं किया. अब सिंपल सी बात कर लेते हैं. आपका जो टीचर है या आपका जो स्कूल में अभी 10th का रिजल्ट आया, so result आया, they found out who is first in school and how many got more than 90%. ऐसा अनाउंस करते हैं स्कूल में कौन फर्स्ट आया? आपको मालूम ही नहीं है? आया कि वैसा बोला ना, ये फर्स्ट आया स्कूल में, 100% रिजल्ट आया. स्कूल जाता था कि नहीं जाता था यार? हाँ तो 100% रिजल्ट आया ऐसा बोलता है ना हर स्कूल वाला. ऐसा बोलते हैं 99.99 आया. मालूम है क्या? हाँ, तो सब कहां से मालूम पड़ा? ऐसा रिजल्ट आया, टीचर बोलेगा जादू. ऐसा बोला ए फर्स्ट, ए 90. कैसे किया भाई? हाँ डेटा से ना. मतलब सबका क्या निकाला रहेगा? परसेंटेज, मार्क्स. somebody would have done, no? सबका क्या लिखा रहेगा? नाम, परसेंटेज, नाम, परसेंटेज. फिर बोला रहेगा ना सबसे, एक्सेल शीट में डाल दिया जो टॉप मोस्ट, टॉप 10. तो आपको मालूम पड़ता ना मैं टॉप 10 में है कि टॉप 5 में है कि टॉप 100 में है कि लास्ट में से 5 में है. कहाँ है मेरा स्टेटस? वो स्टेटस कहां से मालूम पड़ता है? ऐसे ही. तो व्हाट दे आर डूइंग? स्टैटिस्टिक्स. या आपका जो पेरेंट्स, आपका जो मम्मी है, पापा है, हुअर घर में हर महीने में सामान मंगाते हैं. अरे ग्रोसरी, राइस, दाल, चावल मंगाते हैं नहीं मंगाते हैं? हाँ तो मंगाते हैं ना. तो क्या बेसिस पे मंगाते हैं? हुअर, पापा मंगाते हैं कि मम्मी मंगाते हैं? क्या आप मंगाते हो? क्या बेसिस पे मंगाते हैं? ऐसा बोलते हैं क्या डीमार्ट वाले को सबका 10-10 किलो बेच देना? चावल 10 किलो, राइस 10 किलो, शुगर 10 किलो, आटा 10 किलो, सॉल्ट 10 किलो, सब 10-10 बेच देना. ऐसा बोलते हैं क्या? क्यों? सबका क्वांटिटी सेम रहता है कि अलग अलग रहता है? हाँ तो हु डिसाइड्स? हाउ डू दे डिसाइड? हाँ बेसिस ऑफ द नीड. हाउ डू दे नो द नीड? कैसा मालूम पड़ा? आपको आके पूछते तू बोल कितना चावल खाएगा, फिर इसको बोले तू कितना शक्कर खाने वाला है. ऐसा पूछेंगे, जवाब आता है कि आपको? हाँ ऐसा पूछेगा चपल बोल पूरा महीने में तू कितना चपाती खाने वाला है.
तो बोला ऐसा पूछेगा तो मैं खाएगा भी नहीं. Will you say or you know or you don't know? Huh? Does mummy come and take an interview? हाँ तो how does she know? I hope my question is sensible. मैं पूछ रहा है, my question is answerable or not answerable? हाँ तो टेल. कैसा मालूम पड़ा तुम्हारा मम्मी को कि चावल 15 किलो होना चाहिए, आटा 10 किलो होना चाहिए, शुगर 1 किलो होना चाहिए, या सॉल्ट जो है 1 ही किलो होना चाहिए, चना दाल या आटा दाल बाल जो भी मंगाते हैं 2 किलो होना चाहिए. कैसा मालूम पड़ा भाई? Previous month she knows, no, she has been doing for so many years. You must be 14, 15, no? What must be your age? 14, 15, 16, 15, 12 साल. हाँ तो 15-16 के आसपास है ना आप. कोई तो टीन में है ना, 16-15-16 में है ना आप. तो तभी से तो मम्मी है ना, तो तब से खाना मंगा रहा है ना. कि आपका बर्थ हुआ, आपने बोला अभी मैं जिम्मेदार है. वो तो नहीं कर रहे हैं, तो 15 साल से तो कर रही है, तो 15 साल से कर रही है तो उनको एक आइडिया है. उनको एक आइडिया है. हर महीने में पहला कुछ गलती किया रहेगा, ज्यादा मंगा लिया, तो अगले महीने में कम किया, कम मंगा लिया, ज्यादा किया, ऐसा प्लस माइनस करते 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 नाउ शी हैज बिकम अ प्रोफेशनल. एंड अभी बोलेगा चल एग्जैक्ट. एग्रीड? So what she is doing? Statistics. It's used everywhere. Maybe like you, maybe your mother is not from statistical field, but and she has done something else. You go and tell her, Mom, you know, you are using statistics. You say, what's that? I don't even know that. But she is doing it. समझ रहे? आ रहे आपको? समझ में आ रहे? That is statistics. हर एक जगह में यूज होता है. जो भी तुम क्लास में जाता था 10th स्टैंडर्ड में या प्राइवेट ट्यूशन, किधर जिधर भी जाता था कि नहीं जाता ना? नहीं जाता तो बोलो ना नहीं जाता था, मैं खुद से करता था. तो जाता था आप क्लास, तो वो टीचर जो भी पढ़ाता था बोला ये इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा. ऐसा कभी तो बोला रहेगा. तो कैसा मालूम पड़ा? हाँ, एनालिसिस ऑफ पास्ट क्या? क्वेश्चन पेपर. एनालिसिस ऑफ पास्ट क्वेश्चन पेपर. सो दे अरे मार्क कर 100%, बायाट कर दे एकदम, सब ब्लड में हो जाएगा. ऐसा कुछ तो स्टोरी सुनाया आपको, बोला मार्क कर चल. हाउ डू दे नो? वो एग्जामिनर आके ऐसा उसको बोला ऐका इंपॉर्टंट है, मार्च 25 मध्ये येणार. ऐसा तो नहीं करते, ऑब्वियस है. So past analysis है. What they are doing? Statistics. It's very, very profoundly used across every field. Maybe consciously and subconsciously or unconsciously, whatever it is. Are you getting my point? Understanding? तो ये statistics है क्या भाई? What is this statistics? So if you think and define statistics, it is called collection, classification, presentation and analysis of data. कौन से 4 इंपॉर्टेंट वर्ड है? तो जहां पर भी ये 4 शब्द का प्रयोग होगा, मीन्स वो क्या कर रहा है? बस सिंपल. वो डेटा मतलब इट कैन बी, एग्जाम्पल बोलो, 4 एग्जाम्पल बोलो. अरे अभी लिया ना एक क्रिकेट का स्कोर, एकदम क्रिकेट फैन, आईपीएल फैन है लगता है वो. और मार्क्स, दूध पहुंचाने वाला. और अरे 4 एग्जाम्पल बोला, इतना लोग बैठा हुआ है, फटाफट नहीं आ रहा. अटेंडेंस, हाइट, वेट. अरे वेट, वजन, नॉट यू वेट, वजन है ना, ये सब जगह. सो इट कैन बी, डेटा इज अ वेरी
it's a term, it's used to anything you analyze is a data. You are analyzing marks, then it is marks. You are analyzing height, it is height. You analyze weight, it is weight. You analyze your maybe scores in your match, it is scores. You analyze income, it is income. You analyze expense, it is expense. You go on talking, that's it. Clear है? Correct? आगे बढ़े? हाँ. अभी हमारा ये हो गया इसका मीनिंग, सब्जेक्ट का मीनिंग. अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पार्टीशन वैल्यूज. क्या हमारा चैप्टर का नाम? पार्टीशन वैल्यूज. वर्ड देख लो, क्या वर्ड है? ये वर्ड पार्टीशन सुना है क्या? पार्टीशन, वर्ड पार्टीशन सुना है कि नहीं सुना है? कहां सुना है? इंडिया पाकिस्तान, एकदम ऐसा हॉट टॉपिक. इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ? वेरी गुड. पार्टीशन मतलब क्या किया? डिवाइड. क्या डिवाइड किया? लैंड. हमने डिवाइड किया, बोला ये ऐसा बॉर्डर है, ये तेरा है, ये मेरा है, तू इधर नहीं आने का मैं मारेगा, तू उधर आने का मैं मारेगा. सिंपल नो? पार्टीशन. सो इधर क्या बोल रहे? पार्टीशन. तो व्हाट दिस वैल्यूज विल डू? डिवाइड. व्हाट दिस वैल्यूज विल डू? तो ये जो भी डेटा है, जो भी डेटा है, समझो ये मार्क्स है, तो ये क्या करेगा? पार्टीशन वैल्यूज ये मार्क्स को तोड़ेगा. इट विल डिवाइड द मार्क्स इनटू इक्वल पार्ट्स. डिवाइड द मार्क्स इनटू व्हाट? सिर्फ तोड़ेगा नहीं, इक्वली तोड़ेगा. पार्टीशन वर्ड स्टैंड्स फॉर तोड़ेगा, बट पार्टीशन वैल्यूज मतलब दोज वैल्यूज विच विल डिवाइड द डेटा इनटू व्हाट? इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स. You have studied one partition value in your 10th standard. Chalo. In your school. If I say 10th standard, you'll say no, not 10th. I studied in 9th. School में एक partition value पढ़ के आए आप, which was dividing the data into. Any memory recall? Very good girl. Median. She is saying, sir, मैंने स्कूल में पढ़ा एक टर्म था जिसका नाम था मीडियन. बाकी लोग का फेस में कोई रिएक्शन नहीं है. अरे सुना, कुछ सुना तो ऐसा बोलो ना, हाँ ना, बराबर है, रॉन्ग है, तू मत बोल. अभी भी नहीं बोल रहा है. सुना क्या नहीं सुना? हाँ, ऑल आई वर्ड द वर्ड मीडियन. क्या याद आ रहा है? इसका फॉर्मूला याद आ रहा है कि मीनिंग याद आ रहा है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है? इसको मीनिंग याद आ रहा है. व्हाट वाज मीडियन डूइंग? ये बोल रहा है डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. मिडिल, मिडिल वैल्यू, मिडिल पोर्शन, मिडिल वैल्यू. और क्या क्या याद आ रहा है? शर्माने का नहीं, रॉन्ग तो रॉन्ग. एनी लैंग्वेज ओके, नो ग्रामर. हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जर्मन में मत बोलना बस. हाँ, फॉरेन लैंग्वेज छोड़ के कुछ भी बोलो, चलो. ये बोलता है 2 इक्वल पार्ट्स, वो बोलता है मिडिल पोर्शन, मिडिल वैल्यू. और कुछ? हाँ, और कुछ? हाँ, फॉर्मूला याद आया तो भी बोल सकता है. हाँ, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. ये बोल रही है फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू. हाँ, ऐसा कुछ बोलो ना. वो बोलता है सर वो मीन का फॉर्मूला है. बाकी लोग बोलता है काय पण चालेल. मीडियन परफेक्ट, नो प्रॉब्लेम. तो काय पण सांग, लपड नको. ये बोलता है n+1/2. एक जन बोलता है n+1/2. आप लोग ना ऐसा बहुत टाइम लगाते, हाँ ना बोलने के लिए भी टाइम लगाते. ऐसा देख के बोला ना, हाँ यार याद आ रहा है, कुछ तो बराबर है. हाँ, वो ऐसा कुछ बोल रहे. हाँ बोल भाई. हाँ,
हाँ, वो बोलता ऑड का ये है, इवन का कुछ तो था। हाँ, वो कम से कम कुछ तो बड़बड़ कर रहा है, बोलता हाँ ऐसा कुछ तो पार्टिसिपेट कर रहे हो। हाँ, बाकी लोग उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा, हाँ ना तू बराबर बोल रहा है, ऐसा जो सब बाकी लोगों को गुस्सा रहा है, तू काय को बोल रहा है, तू भी हमारे जैसा रहना तकलीफ ही नहीं। हाँ, तो ये सेइंग सर ये ऑड का है, इवन का कुछ अलग था। इतना तो सपोर्टिव रहो, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, तू मत बोल और ज्यादा बोल। अभी भी जवाब में एकदम जिद्दी है इंसान लोग है। इज ही राइट? हाँ, yes, but there is some small change. It should be median is equal to n plus 1 upon tooth, क्या कुछ आगे वर्ड था, हाँ, n plus 1 upon tooth term, करेक्ट। वो लाइन नीचे आ गया, उसको छोड़ दो। हाँ, n plus 1 upon tooth term, करेक्ट। हाँ, सिर्फ इतना नहीं था, बाकी टूथ टर्म भी था। एग्री? तो व्हाट वाज मीडियन डूइंग? मीडियन इज मिडिल। मीडियन इज व्हाट? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म, सेंटर वैल्यू, divides the data into how many parts? Two equal parts. Two equal parts. Two equal parts. एग्जाम्पल ले लो, चलो जरा ध्यान से, लेट्स सी आपको याद आ रहा है कि नहीं। समझो मैंने मार्क्स पूछा, मैंने बोला चल मार्क्स बोल, मार्क्स बोल, नहीं पूछ रहा हूं मैं, ऐसे बोल रहा हूं। समझो मार्क्स बोल, मार्क्स बोल, तो किसी ने बोला सर मुझे 90 मिला, कोई बोलता 88 मिला, कोई बोलता 95 मिला, कोई बोलता 97 मिला, कोई बोलता 82 मिला। ठीक है, हेलो? हाँ, कैसा ढूंढेगा मीडियन? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई। हाँ, कुछ तो बराबर सुना मैं यहाँ। हाँ, इट हैज टू बी फर्स्ट अरेंज्ड इन, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर। कुछ लोग का भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ, आता इतना काहीतरी आठवतंय मला। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? बिग टू स्मॉल। थैंक यू वेरी मच। स्मॉल टू बिग। हु इज द स्मॉलेस्ट? हाँ, वेरी गुड। 82, 82 इज द स्मॉलेस्ट। तो इससे शुरू करेगा ना। हाँ, बोलो 82। हाँ हाँ हाँ, यस। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अरे फॉर्मूला अप्लाई करो। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। बोलो 5 प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। बोलो 5 प्लस 1 इज व्हाट? 6/2 इज व्हाट? तो क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड, थर्ड टर्म। नहीं तो आप बोलेगा 3 लिखो। थर्ड टर्म। हु इज द थर्ड टर्म? ए फर्स्ट है ना, ए सेकेंड है, ए थर्ड है, तो 90 इज द थर्ड टर्म एंड दैट इज द मीडियन। एंड डज इट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? हाउ डू यू नो इट इज डिवाइडिंग इन 2 इक्वल पार्ट्स? 5 में से ये सेंटर पे, 2 लेफ्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे, तो हो गया ना इक्वल। गॉट इट? ये स्कूल तक की डिस्कशन है। So this I revise so that when I do partition values, you know, yeah, I have discussed this. Now it's an upgradation. तो मैं डायरेक्ट पार्टीशन वैल्यूज शुरू करूंगा, तो बोले ये क्या नवीन नवीन कुट्टू नालो, ये आपने किया हुआ है, इसका एक्सटेंशन है। सो पार्टीशन वैल्यूज जो है उसमें और इसमें मीडियन में फर्क क्या है? पार्टीशन वैल्यूज और बड़ा है, मीडियन सिर्फ आधा आधा करता है। पार्टीशन वैल्यूबल तो तेरे को जैसा मांगता है वैसा करेगा। आधा आधा चाहिए, 25-25 चाहिए, 10-10 चाहिए, 1-1 चाहिए, आधा आधा चाहिए, जैसा मांगता है वैसा करके देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। सो एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, आप सीखोगे 3 टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यूज। कितना?
What are the three types? Quartiles, deciles, and percentiles. What are the three types you learn? Quartiles, deciles, percentiles. Quartiles is one type, percentile is, decile is second type, percentile is the third type. अब ये आज हम बात करेंगे क्वार्टाइल की. स्लोली स्लोली केयरफुली. मैं बीच बीच में पूछेगा तभी जवाब चाहिए मेरे को. क्वार्टाइल, सिर्फ वी आर टॉकिंग ऑफ क्वार्टाइल. क्वार्टाइल कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वार्टर. हैव यू हर्ड द वर्ड क्वार्टर? सर्कल का क्वार्टर कैसा करता था? कितना पार्ट में तोड़ता था? और उसका वन पार्ट. तो क्वार्टर को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसा लिखता था? हाउ यूज्ड टू राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म? हाँ, वेरी गुड, 1/4. मतलब यू आर गोइंग टू डिवाइड इन हाउ मेनी पार्ट्स? वेरी गुड, 4 पार्ट्स. 4, हाँ, वेरी गुड. इक्वल इक्वल, इंपॉर्टेंट. 4. तो कितना पॉइंट्स ऑफ डिवीजन रहेगा? 4 पार्ट रहेगा तो कितना पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होना चाहिए? अरे सोचो. चॉकलेट है ना? चॉकलेट, डेयरी मिल्क. So don't eat, so innocent. 5 स्टार. कोई तो चॉकलेट का बार है, उसको अपने को 2 टुकड़ा करना है तो कितना बार कट करते हैं? 1 बार. 3 टुकड़ा करना है तो 4 टुकड़ा करना है तो इजी. 10 टुकड़ा करना है तो 9 टाइम्स. 40 टुकड़ा करना है तो समझ गया ना? हाँ, तो इधर कितना टुकड़ा करना है? कितना टुकड़ा करना है पूछा. हाँ, तो क्वेश्चन पूछने का. आप यू डोंट आंसर एनीथिंग एंड आई विल से यस, आई विल नॉट. तो कितना टुकड़ा करना है? तो कितना पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होगा? वेरी गुड, दैट्स अ राइट आंसर. तो मेरा जो क्वार्टाइल है वो क्या कर रहा है? जो डेटा है उसको 4 टुकड़ा कर रहा है. मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन विल बी देयर? 3 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन. ईच पॉइंट इज कॉल्ड एज अ quartile. Each point is called as a quartile. Agree? क्या क्या पढ़ा? How do you remember? Quartile comes from the word means how many equal टुकड़ा? How many points of division? Named as? ऐसा पूरा बोलने का. Agree? अब 4 टुकड़ा कर दिया तो हर एक के पास कितना परसेंट रहेगा? कितना परसेंट केक रहेगा? हाँ, एग्री? तो सबके पास 25% माल पड़ा रहेगा. इसके पास 25, इसके पास 25, इसके पास 25. एग्री डिसएग्री? हाँ, तो मैं पूछेगा Q1 तक कितना परसेंट ऑब्जर्वेशन कवर हुआ? वेरी गुड. Q2 तक कितना परसेंट कवर हुआ? Q3 तक कितना परसेंट कवर हुआ? हाँ, सिंपल. डन? कंफ्यूजन? पक्का? याद रहेगा? हाउ डू यू रिमेंबर? कैसे याद रखेगा क्वार्टाइल? क्वार्टाइल कम्स फ्रॉम द वर्ड 1/4. हाउ मेनी इक्वल पार्ट? कितना पॉइंट ऑफ डिवीजन? नेम्ड एज? Q1 will cover how much percent? Q3 बोला तो 50 बोल रहा है. देखो अपना एकदम ऑटो मोड है. 25 के बाद 50 बोलेगा. भले वो Q3 पूछेगा, मैं 50 ही बोलेगा. क्यों? मैं बोला आपको, सुनो फिर जवाब दो. Q3 कितना कवर करेगा? Q1 कितना करेगा? हाँ, Q2 कितना करेगा? हाँ, तो अभी तसल्ली आ गया, मेरा 50 आ गया है. आ गया क्लियर? अभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन रॉ डेटा. हैव यू हर्ड दिस वर्ड रॉ डेटा? अच्छा, आपको टाइम लगेगा वापस. कौन सा फाइल खोलू मैं? रॉ डेटाचा फाइल कुठं गेलं?
नो प्रॉब्लम, यू स्क्रैच द फाइल एंड फाइंड आउट बाय रॉ डेटा का क्या मीनिंग था. मीनिंग बोलो तो भी चलेगा, एग्जाम्पल बोलो तो भी चलेगा, जो तुम्हारे मन में आया वो बता देना. रॉ डेटा रिलेटेड वो बोलता है रॉ डेटा मतलब अरेंज नहीं रहता है, रैंडम नंबर्स रहते हैं. हाँ ये कुछ बोल रहे हैं. हाँ बोला करेक्ट बोल रहे हैं. हाँ और एग्जाम्पल दे दो. चलो करेक्ट बोल रहा है वो, तो उसको क्यों देख रहा है, सब वो थोड़ी करेगा. ऐसा लग रहा है वो तो क्या बोल रहा है वो उधर, ही हैज ओनली पेड फीस और ऑल ऑफ यू आर पेड फीस टू हिम. तू बोल चाल अभी. अरे एग्जाम्पल दो. 25 किलो है. बोलते एक क्लास में 25 किलो भी कोई है. सही है एकदम. ऐसा अपने आप को ऐसा क्या बोलते हैं उसको, स्लिम ट्रिम, व्हाट इज दैट, जीरो फिगर, 25 किलो. अरे कम ऑन यार. हाँ चलो कोई बात नहीं. ही सेइंग सर सबका वजन पूछो. बोले सबका वजन पूछ के लिख दो, तो दैट इज नथिंग बट रॉ डेटा. तो बोला किसी को वजन पूछा मैंने, बोलता है 50 किलो है, कोई बोलता है 25 किलो है, कोई 39 बोलेगा. अच्छा यही सबका वजन लेके बैठाएगा. बोलो 40. हाँ 19. सही है ना. 19 ऐसे अभी पैदा हुआ है ऐसा बेबी बॉय. हाँ और 75 ऐसा. चलो बस. हाँ चलो बस हो गया. हाँ चलो बोला बस हो गया. दिस व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ डेटा. ओनली सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशंस एंड नो फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी वर्ड सुना है क्या, क्या रहता है फ्रीक्वेंसी. वो कुछ तो है. चलो नहीं है ना, नो फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, खत्म हो गया बात. हाँ ओनली व्हाट इज देयर, सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशन. आर दे सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशन. You understand English or you don't understand? Hindi you understand, you don't understand. Where you don't understand, please ask me. You are scaring me off. Are they single number observation? Yes. तो ये कौन सा टाइप ऑफ डेटा हो गया. तो अब मैं स्टेप्स बोलूंगा, आपको स्टेप्स करना है. व्हाट इज आवर स्टेप 1. वी नॉर्मली डू. अगर मुझे पार्टीशन वैल्यूज ढूंढना है तो जैसा आपने मीडियन का किया वैसे ही 3 स्टेप है. क्या स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन. गुड. स्टेप 2 में किसका वैल्यू ढूंढेंगे, n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. एंड स्टेप 3 में क्या करेंगे, फॉर्मूला. इधर क्या फॉर्मूला था मीडियन का, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन. थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वार्टाइल में इसमें क्या चेंज होना चाहिए. वेरी गुड, स्मार्ट यार. 2 नहीं होगा, क्यों. मीडियन क्या करता था, 2 टुकड़ा, इसलिए डिवाइड बाय 2. क्वार्टाइल क्या करेगा, तो डिवाइड बाय क्या होएगा. बस ऐसे ही याद रखने का, यही सही तरीका है याद रखने का. अरे तो मैं मालूम पड़ा उसको 15 मिनट बायहार्ट कर रहा है. तो कैसा फॉर्मूला बना, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं. QI इज इक्वल टू n + 1/4 इंटू ith टर्म या ऑब्जर्वेशन, जो भी है, टर्म बोलो ऑब्जर्वेशन बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या फॉर्मूला बना, QI इज इक्वल टू n + 1/4 इंटू ith टर्म. अभी n + 1/4 क्यों आया वो तो मालूम पड़ा आपको. तो कौन तकलीफ दे रहा है, आई. बहुत जन को लगा आई कौन है भाई. हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर. हाँ तो हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर. गुड क्वेश्चन. हाउ मेनी क्वार्टाइल्स आर देयर. हाँ 3. व्हाट आर दे, Q1, Q2. Q is quartile, no? First quartile. हाँ तो बहुत जन को लगा 4 है. 4 क्वार्टाइल नहीं है, 4 पार्ट्स है. पार्ट्स, केक्स, चॉकलेट. क्वार्टाइल इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कटिंग. एग्री. हाँ अभी आप बोलेगा सर आई क्या है, व्हाट इज आई. आई विल बी either 1 or 2 or 3
4 होएगा? हाँ, क्यों नहीं होएगा 4? 3 ही है, 3 ही है भाई. तो either I'll put I as what? When will I put I1? When I want first quartile. When will I put I as 2? Second quartile. When will I put I as 3? Easy. Fourth quartile है क्या? तो बस 1 2 3 सिंपल. क्लियर? कंफ्यूजन? पक्का? श्योर ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी स्टेप बोलो. चलो मुझे स्टेप बताइए, एक एक स्टेप बोलते जाइए. चलो हम लोग पूछे, इंडिविजुअल पूछे कि कोरस कोरस बोलेगा? हाँ, सेफ्टी है ना. हाँ, सेफ्टी फैक्टर. हाँ बोलिए, कम ऑन, बोलते जाइए. स्टेप 1, अरेंजिंग द डेटा इन. हाँ, तो इसको अरेंज करना है. बोलिए. 19, 25, 39, 40, 50, 75. एग्री? स्टेप 2 बोलो. n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. हाँ, काउंट करने आता है ना. 1 2 3 4 5 6. एग्री? स्टेप 3 क्या है? हाँ, क्या फॉर्मूला है? n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू ith टर्म, ith ऑब्जर्वेशन जो भी है. सो qy इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4 इंटू ith टर्म. चलो अब मुझे q1 ढूंढना है, तो i की जगह पे क्या डालूंगा? हाँ, तो बोलो. चलो 6 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 1th टर्म. बोलो. 7 upon 4. क्या into 1? Anything into 1 is same, no? So what comedy you are doing then? 7 by 4. 7 by 4th term. मेरे लिए क्यों रुका? आप बोल रहा था ना कोरस कोरस. अच्छा, डिवीजन मैं करूं? शर्म ही नहीं है. चलो हाँ, 7 डिवाइड बाई 4 क्या होएगा भाई? 1 4 जार 4 नो, 3 नो, डॉट नो, 30. अरे बेशरम, आना तो बोलो. हाँ, 7 जार 28, 25. तो क्या लिखूं मैं यहां पर? 1.75 टर्म. 1.75 टर्म है क्या? 1.75 टर्म. कौन सा टर्म है तुम्हारे पास? कौन सा टर्म है मेरे पास? फर्स्ट है क्या? सेकेंड है क्या? थर्ड है क्या? फोर्थ है? 1.75 है क्या? नहीं है. बट 1.75 किसके बीच में होगा? इनके बीच में होगा. एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? हाँ, तो कैसा ढूंढना है सीख लीजिए. तो हाउ डू यू डू इट? 1.75 टर्म. हाँ, मैं बता रहा हूं कैसे ढूंढना है. It will be first term plus. Will it be first term plus something? Yes. 1.75 somewhere in between. No? So 1.75 is something in between this. So obviously it will be more than 19 or less than 19? Huh? So it will be 19 plus something. हाँ, तो what is that something? देखो, first term plus how much extra? How much extra? 0.75 extra. Correct? No, 1 plus 0.75 extra of what? The gap between whom? First and second. 0.75 आगे जाना है. Of what? The gap between whom? How do I find the gap between first and second? प्लस करना है, माइनस करना है? व्हाट माइनस वॉस? फर्स्ट माइनस सेकेंड करूंगा कि सेकेंड माइनस? हाँ, क्यों सेकेंड माइनस फर्स्ट करेगा? ऑलवेज बिग माइनस स्मॉल. ऑलवेज. नहीं तो मालूम पड़ा वजन नेगेटिव में आ रहा है. बोला क्यों नेगेटिव में आ रहा है? स्पेस में है. स्पेस में नेगेटिव रहता है ना. चलो मालूम नहीं, ठीक है, जाने दो. हाँ, तो नेगेटिव रहता है तो नहीं होगा ना. तो इट विल बी ऑलवेज व्हाट? तो क्या किया मैंने? जरा बराबर बोलो. फर्स्ट प्लस क्या? 0.75 एक्स्ट्रा ऑफ द गैप बिटवीन व्हाट? सेकेंड टर्म
minus first term. Do you agree with this? Hello? Yes. हाँ भी बोलो, because next question खुद से करने वाले. बोलो, who is the first term? 19. Agree? Yes. Who is the second term? हाँ तो बोलते जाओ, क्या लिखूंगा बोलो? 19 plus 0.75 into 25 minus 19. Agree? Yes. पहला कौन सा काम करना है? ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करने का रहता है? हाँ हाँ, वेरी गुड. सबट्रैक्ट. किसने बताया था हमको ऐसा? वेरी गुड, बॉडमास. ब्रैकेट, ये था ना ब्रैकेट. ऑफ नहीं, ओपन द ब्रैकेट है. ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट ओपन करो, फिर क्या करो? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन. हाँ वो समझ गया आप. हाँ तो पहला ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे. बोलिए. 19 प्लस 0.75 इंटू 6. अभी ओपन द ब्रैकेट, सो मल्टीप्लाई. 19 प्लस ये क्या आएगा? 3345. 2 डेसिमल पॉइंट ना, तो क्या हो जाएगा? 4.5. बराबर किया ना? आप ऐसा एकदम डरावना देखते हैं ऐसा कि मैंने मिस्टेक कर दिया. बराबर ना? अब क्या होगा बोलो? कम ऑन. Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 23.5. एग्री विद दिस? कंफ्यूजन? पक्का? श्योर? कैसा किया 1.75? शायद वो पहला बार सीखा आपने. हाउ डू यू डू 1.75? फर्स्ट प्लस, हाउ मच प्लस? 0.75 प्लस ऑफ व्हाट? द गैप. गैप बिटवीन whom? Second and first. That is second minus first. Always big minus small. ये तो एग्जाम में अपने को डाउट आता है, क्या करूं? फर्स्ट माइनस सेकेंड कि सेकेंड माइनस फर्स्ट? इट्स ऑलवेज व्हाट माइनस व्हाट? बिग माइनस स्मॉल. एग्री? कंफ्यूजन है? नोट डाउन कर ले. फिर Q2 Q3 आई विल आस्क यू वन बाय वन. रेडी? चलो स्टार्ट कर दीजिए. हेडिंग दे दो. चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1. हाँ चलो राइट डाउन. क्या हो गया बोलो? वो सेकेंड वाला है. हाँ हाँ, और एक बार. राइट डाउन लिखा आपने. चैप्टर 1 पार्टीशन वैल्यूज. चैप्टर 1 पार्टीशन वैल्यूज. राइट डाउन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 देखो. पॉइंट नंबर 1, पार्टीशन वैल्यूज. पार्टीशन वैल्यूज divides. Partition values divides the given set of observations. वो पंखा बंद कर दो. Divides the given set of आपने नहीं, उसको नहीं बोला, बंद कर दो. Divides the given set of observations into equal parts. Divides a given set of observations into equal parts. Full stop. Point number 2. The different types of partition values are. The different types of partition values are. Next line. Subpoint A, quartiles. Subpoint B, deciles. स्पेलिंग यहां पर है बोर्ड में. Quartiles, deciles. Subpoint C, percentiles.
क्वार्टाइल्स, सब पॉइंट बी डेसाइल्स, सब पॉइंट सी परसेंटाइल्स। ठीक है, जो भी स्पेलिंग चाहिए पूछ लेना है, शर्माना नहीं आपको। क्लियर? डेलिया राइट ऑन। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट नंबर 3 हेडिंग दे दो, क्वार्टाइल्स। पॉइंट नंबर 3 हेडिंग क्वार्टाइल्स, अंडरलाइन करो, एड ऑन, एड ऑन। द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, the given set of observations are divided into, the given set of observations are divided into 4 equal parts. Full stop. There will be, full stop, there will be 3 points of division. There will be 3 points of division known as Q1, Q2 and Q3. Q1, Q2 and Q3. डन। नेक्स्ट लाइन में डायग्राम बना लो एंड डिवाइड कर लो। आप डायग्राम बना दो, 4 पार्ट कर दो। ड्रॉ द डायग्राम। पेंसिल है तो पेंसिल से करो प्रेफरेबली, wherever it is diagram, preferably with pencil. You don't have a pencil, there's no choice in, and then your partner should have it. They also don't have, then no problem at all. क्या डायग्राम? और यहां ऐसा लिख दो, इधर तक 25%, इधर तक 50%, इधर तक 75%। डन। 100% में कोई क्वार्टाइल ही नहीं है ना, बिकॉज वो तो लास्ट ऑब्जर्वेशन ही होगा ना, उसको ढूंढने का जरूरत क्या है? जो लास्ट में बैठा है उसको ढूंढने का जरूरत ही नहीं है ना, उसमें दिमाग क्यों लगाएगा? फॉर्मूला काय को बनाएगा? चला जाएगा लास्ट में, देखे बोला तो आजा भाई, तो फॉर्मूला क्यों करेगा? 75 के लिए मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा, वेर इज 75, वेर इज मिडिल, बट फॉर द लास्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन आई नीड नॉट डू एनीथिंग। क्लियर नो? इनका क्या डाउट था, सुना ना आपने? बोलते क्यों आप 100% नहीं कर रहे हैं? क्यों करूंगा फॉर्मूला, चला जाऊंगा लास्ट में। आर वी क्लियर? हाँ, तो यू हैव डाउट यू कैन आस्क, गॉट द पॉइंट? चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, राइट ऑन। पॉइंट नंबर 4, राइट ऑन। Quartiles in case of raw data. Quartiles in case of raw data. ब्रैकेट में लिख के रखो पेंसिल से, ओनली सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशंस एंड नो फ्रीक्वेंसी। पेंसिल से लिख के रख देने का, ओनली सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशंस, नो फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशंस, नो फ्रीक्वेंसी। ठीक है?
एड ऑन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अंडरलाइन करो, नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टेप 1, स्टेप 1 arranging the data in ascending order. Step 1 arranging the data in ascending order. Step 2 find the total number of observations. Find the total number of observations, bracket capital N. Observations bracket capital N. Step 3 formula. लिख दो फॉर्मूला, QI इज इक्वल टू, देख के बराबर लिखो, QI इज इक्वल टू ब्रैकेट N प्लस 1/4 इंटू I, ब्रैकेट क्लोज्ड, TH ऊपर, उसके नीचे टर्म N प्लस 1/4 इंटू ith टर्म। क्लियर है इधर तक? कंफ्यूजन? पक्का? चलो फाइन। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, यहां पर से आपका टेक्स्ट बुक आप यूज कर सकते हो, वहां पर विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पेज 124, पेज 124, क्वेश्चन नंबर, पेज 124 है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 124, क्वेश्चन 1। हाँ ठीक है, यू कैन यूज दिस टेम्परेरीली, टेम्परेरी आप यूज करो आज के लिए। पेज 1 लेफ्ट साइड पे, पेज 124, क्वेश्चन नंबर 1 मिला बेटा? ऑल ऑफ यू गॉट इट? अब देखो एक टेक्स्ट बुक कैसा है, देखो जरा ध्यान से देख लो टेक्स्ट बुक कैसा है। यहां पर हमने क्या लिखा है ऊपर, एक्सरसाइज 1, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, Q1.1। आपका जो नहीं, आपका जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है, दैट इज अ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड टेक्स्ट बुक फॉर FYJC, तो वही टेक्स्ट बुक कॉलेज में यूज होगा, ठीक है? तो हम लोग बोल रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का 1.1 इज अवर एक्सरसाइज 1, ठीक है? तो तुम्हारा कॉलेज वाला 1.1 कराएगा तो यही क्वेश्चंस कराएगा। तो आप बोले फिर सर आपने 1.1 क्यों रखा है? बिकॉज हमने उतना ही क्वेश्चन नहीं रखा है, हमने एक्स्ट्रा भी रखा है। लाइक एक्स्ट्रा क्या किया हमने, आपका पास्ट पेपर में से भी क्वेश्चंस रखे। सो यू विल फाइंड सम टफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस विच इज नॉट देयर इन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बट अपना टेक्स्ट बुक में। तो आया कहां से? पास्ट क्वेश्चन से आया। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने वो एक्सरसाइज ही डिफरेंट रखा है, बट ब्रैकेट में लिखा है सो यू नो गवर्नमेंट का 1.1 है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो बहुत डिजाइन प्रॉपरली किया है। और इसके पीछे ना आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस मिलेगा। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का मतलब क्या है? कहां करने का? घर पे, प्रैक्टिस घर पे करने का, ठीक है? होमवर्क है इसका मतलब, का नॉर्मल नाम होमवर्क है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इज प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? हाँ, सो वो घर पे करना है, मैं बोलूंगा कौन सा करना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल? मतलब कौन सा करेगा? Q1, Q2 तीनों करने हैं। समझ में आ रहा है? फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले देखिए डेटा कैसा दिया है, 16, 14.9, 11.5 डॉट 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 सो ऑन। तो कौन सा टाइप ऑफ डेटा हुआ ये? हाँ, कैसा मालूम पड़ा? अरेंज नहीं है वो, वैसा मैंने लिखा है, अरेंज नहीं है। क्या वर्ड लिखा है मैंने? सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशंस एंड नो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एग्जाम में क्या अरेंज करके देगा तो क्या बोलेगा? आता रॉ नाही, आता पॉलिश झालं, पॉलिश नाही झालं, रॉ आहे
सिर्फ अरेंजमेंट से पॉलिश नहीं हो रहे हो, फ्रीक्वेंसी आएगा तो ग्रुप में आएगा। क्लियर? हाँ, तो डोंट गो बाय अरेंज्ड, सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशन है, नो फ्रीक्वेंसी। आर दे सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशन विथ फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी? तो कौन सा टाइप ऑफ डेटा हो गया? रॉ। तो अपना स्टेप्स अप्लाई करने का क्या है? अपना स्टेप 1, हाँ, वो स्टेप एक एक करते जाने का। क्वेश्चन ये कॉपी करने का जरूरत नहीं है ना, आपने डायरेक्ट हम स्टेप शुरू कर सकते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर सकते हैं। विल आस्क का 1 by 1 कितना डेटा पहले गिन लो ना, नहीं तो बाद में आप काउंट नहीं करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14, हाँ, तो मतलब अरेंज करने के बाद भी 15 रहना चाहिए। ये तो मतलब बड़ा आपने अरेंज किया 12 ही हुआ है, तो लिख दो यहां पर एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 124 क्वेश्चन 1 solution arranging the data in ascending order, arranging the data in ascending order। चलो स्टार्ट कीजिए, यहां से शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट गर्ल, हाँ बोलिए। 10.5 कॉमा 10.6 10.7 10.9, हाँ बस। चलो, शी सेट सम 5 ऑब्जर्वेशंस। क्या नाम है आपका? रिया। रिया हैज डन द फर्स्ट 5। चेक कर लो रिया ने बराबर किया है कि नहीं किया है। ऑब्जेक्शन है तो अभी बोलने का, मालूम बड़ा रिया का मस्ती कर रहा, लास्ट में बोलेगा तुम। हाँ, नेक्स्ट गर्ल पीछे, क्या नाम है आपका? समृद्धा। संयुक्ता इज स्टार्टिंग द नेक्स्ट 5, बोलिए। 11.5 11.8 हाँ, 5 बोलने का। 11.8 12 12.5 13 13.5, नहीं जरूरत नहीं। 13.5 तो और एक बोल दिया संयुक्ता ने, बराबर ना? हाँ, चलो आफ्टर संयुक्ता नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? निधि। तो निधि डज द लास्ट 5। 13 हो गया बेटा, 13.5 तक बोल दिया संयुक्ता ने। 14 14.5 14.9 16, खत्म। चेक कर लो 15 है क्या? तो चलो 15 बराबर है। चेक कर लेने का, कभी भी भरोसा नहीं करने का, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहने का। मालूम पड़ा अपन ने 1 2 गायब कर दिया या एक्स्ट्रा लग दिया 2 3। हाँ, चलो निधि के पीछे नेक्स्ट बॉय, नाम बोलो बेटा। टोटल, क्या नाम बोला? गौरंग, बोलो। अरे स्टेप सांगायचं, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्या? ऑब्जर्वेशंस, ब्रैकेट एन, कितना? 15। चलो गौरंग डन। सबने किया क्या इधर तक कि वेट करूं मैं? स्टेप्स गायब मत करना, इधर लिखने का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ लोग एकदम शॉर्टकट कर रहा है, n इज इक्वल टू पूरा लिखने का भाई। आई वुड राइट फुल, पूरा लिखने का रहता है, शॉर्टकट मत करना। चलो नेक्स्ट, गौरंग के पीछे क्या ढूंढना है? Q1, Q1 ढूंढना है, तो आई का वैल्यू क्या होगा? 1। सो Q1 ढूंढना है, सबसे पहला Q1 ढूंढना है, आई का वैल्यू हो गया 1। अभी फॉर्मूला बोलने का, QI इज इक्वल टू, हाँ हाँ,
n plus 1 upon 4 into ith term. Is it right? Yes. Next bolo. Q1 is equal to into 1th term. ये बोलता है 16 by 4 होगा, 16 by 4th term होगा, that will be equal to 4th term. 16 plus 1 upon 4, that is 4th term. चलो नेक्स्ट बॉय पीछे, तो क्या आंसर आएगा बेटा? चेक करने का, यहां पर डेटा में चेक करो, हु इज द 4th टर्म? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, हाँ 4th टर्म इज 10.9, बराबर ना? चेक किया क्या नहीं? फर्स्ट सेकेंड कहां से देखने का? क्वेश्चन से देखने का क्या अरेंज करने के बाद देखने का? आने तो मालूम पड़ा टेक्स्ट बुक से देख के छाप रहे हैं, टेक्स्ट बुक देख के नहीं छापने का। ये तो कुछ लोग बोले मेरा आंसर अलग आता है, तो क्या लिखना पड़ेगा आंसर? 10.9 लिख के बॉक्स कर देने का, 10.9 लिख के बॉक्स कर दो। आई होप या क्लियर? गॉट नो? चलो फाइन, फिर क्या ढूंढना है अभी? Q2, सब क्वेश्चन बी, सब क्वेश्चन बी, Q2 is question mark, I is equal to 2। चलो नेक्स्ट पर्सन, यहां से बोलिए फर्स्ट बॉय, फॉर्मूला। into ith term, n plus 1 upon 4 into ith term। नेक्स्ट पर्सन पीछे, into, हाँ into 2th term, बराबर बोल रहा है। क्या नाम है आपका? यश। क्या नाम है? अनिष्का, कनिष्का, प्राप्ति। चलो प्राप्ति स्टेप बोलो। हाँ तो क्या आएगा? 1 जार 2 जार कट हो जाएगा, 8th टर्म। चलो प्राप्ति क्या आया बोलो? 8th टर्म चेक करो। प्राप्ति बोल रही है 12 है। प्राप्ति इज राइट और रॉन्ग? हाँ तो Q2 इज इक्वल टू 12। फाइनल आंसर बॉक्स, Q2 इज इक्वल टू 12। सबको आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है कि अलग आ रहा है? हाँ 15 plus 1, no? हाँ, how did you make it 2? हाँ, I hope all are clear? क्लियर ना? आपको मिला बराबर? हाँ all are getting or not getting? चलो लेट्स, दैट फिनिशेस प्राप्ति's आंसर। पीछे बोलिए क्या नाम है आपका? साक्षी। चलो साक्षी, सब क्वेश्चन सी, Q3 इज क्वेश्चन मार्क, I का वैल्यू 3। फॉर्मूला बोलो। QI इज n plus 1 upon 4 into I thought term। बोलिए Q3 15 plus 1 upon 4 into 3th term। 15 plus 1 upon 4 into 3th term। करते जाओ, नो वेटिंग, स्टेप बाय स्टेप करते जाने का, रुकने का नहीं।
चलो पीछे, साक्षी के पीछे बोलो, तपस्या बोलो। क्या होगा अभी ये? 4 1s are 4 4s are 12th टर्म। चलो तपस्या इज सेइंग सर 12th टर्म है, चेक करो। 14, ये लोग बोल रहे हैं सर Q3 आ रहा है 14, आ रहा है सबको? जम रहा है नहीं जम रहा है? अंडरस्टैंडिंग आया आपको? हाँ दैट्स अ मीनिंग। अभी जैसा ये Q2 जो है 8th टर्म था, Q2 8th टर्म था ना, इधर 12। हेलो, कुछ याद आ रहा है कि Q2 इज समथिंग सेम एज, बोलो, मीडियन। 50% नो, देखो कितना आइटम इसके पीछे है, 7, और कितना है इसके आगे, तो मिडिल, मीडियन, बचपन। सो बचपन में जो सीखा मीडियन, वो कौन है? Q2। तो परीक्षा में बाय मिस्टेक पूछ लिया मीडियन, हाँ तो आप बोले अरे ये तो कभी केलच ना है, केलच ना है नहीं, सेम है वो। तो मतलब क्या समझा हम? ऐसा पेंसिल से लिख के रख देने का इधर, ऐसा दिमाग, Q2 इज सेम एज मीडियन, क्योंकि 50%। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा डराएंगे वो लोग, और खास करके कुछ कुछ कॉलेजेस है जहां पर उनको डराने का और मजा आता है। तो बोर्ड का टेक्स्ट बुक में रहेगा नहीं, वो पूछेगा, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आई होप ऑल आर कंफर्टेबल। हाँ ऐसा बीच बीच में बोलेगा कॉलेज में क्या क्या आता है, आई विल कीप अपडेटिंग यू, क्लियर? चलो फाइन, सो विल डू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन, देन विल एंड फॉर टुडे। हाँ इधर थोड़ा दिमाग का काम है, ध्यान से देख लेना। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आई वांट एवरीबॉडी टू बी पार्टिसिपेटिव। ऑब्जर्व ऑन द बोर्ड, क्या लिखा है देखो, हाँ पढ़ो। मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स, फैमिलीज इन अ इज गिवन बिलो। क्या क्या यूनिट दिया हुआ है देखो, 205 201 फलाना डिंगला जो भी है। कितना लोग है टोटल? क्या हो गया, सब लोग को रिक्वायरमेंट है 12। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट इज? हाँ कैसा मालूम पड़ा रॉ डेटा है? सिंगल नंबर ऑब्जर्वेशन। पहला वो फैसला करो कौन सा टाइप ऑफ डेटा है, रॉ डेटा। एग्री? अब देखो क्वेश्चन को कैसा पूछा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स बिलो विच 25% ऑफ फैमिलीज लाई, विच वैल्यू आई फाइंड इट विल कवर 25%। हाँ हाउ मेनी से Q1, याद आया? कहां से हमने सीखा? वो अपना डायग्राम था ना, डायग्राम याद आया कि नहीं था ना, मैंने बोला था डायग्राम। हाँ देखो Q1 तक कितना टका कवर हो गया, 25। अगर यही क्वेश्चन में 75% बोला होता, इजी, क्लैरिटी। क्वेश्चन कैसा मॉडिफाई किया मालूम पड़ा क्या? पहला वाला एकदम लल्लू था, बोला 1 2 3 ढूंढ, अभी थोड़ा दिमाग लगा दिया, प्रॉपर। हाँ दैट्स हाउ प्रैक्टिकल यूसेज इज डन। रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो वहां पर, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन मंगता तो ब्रैकेट में लिख दो, रॉ डेटा का है। चलो तपस्या इज डन, नेक्स्ट वन, क्या नाम है बेटा आपका? अद्विता। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हाँ बोलिए। नेबर,
अद्विता का पार्टनर, हाँ जो भी आपको लगता है। चलो पीछे, क्या नाम था आपका? क्या नाम बेटा आपका? अद्विता का पार्टनर, हाँ तो बोलो। पीछे ज्योति के पार्टनर, पीछे सिमोनी, बोलिए। 210 तक बोल दिया। हाँ हाँ 230, हाँ 260, बराबर। चलो नेक्स्ट सिमोनी का पार्टनर, हाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ब्रैकेट, हाँ चेक किया, 12 ऑब्जर्वेशंस है क्या ऊपर? किया आपने, गुड। ठीक है, चलो अभी एक स्टेप एक बराबर लिखना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स, बराबर ना? तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। कैसा लिख रहा हूं देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन यूनिट्स, इन यूनिट्स below which 25% of families lie, ब्रैकेट Q1 is क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिखना पड़ता है। क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा अपने को ढूंढना है। ये तो मालूम पड़ा आप सब जगह छापिंग Q1 Q2, अरे भाई वाई Q1, यू टू गिव रीजन, नो वाई Q1। क्वेश्चन ने बोला है कि Q1 नहीं, तो आप लिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट्स बिलो विच 25% ऑफ फैमिली लाई, ब्रैकेट Q1 इज क्वेश्चन मार्क। आपको समझा क्या पैटर्न कर रहा हूं मैं? ऐसा क्यों लिखा हो, समझा क्या? क्लैरिटी नो? हाँ, उसके बाद Q1 का स्टेप करना है। चलो Q1 क्वेश्चन मार्क, I इज 1। चलो आपका क्या नाम था? रिया का पार्टनर, चलो स्वरा, फॉर्मूला n+1/4 इंटू आई। हाँ तो टर्म कौन बोलेगा, ऐसा सेक्रेटरी, जरा शॉर्टकट नहीं करने का। चलो नेक्स्ट, पीछे क्या नाम है आपका? वंश। Q1 इज इक्वल टू 12+1/4 इंटू 1th टर्म, 13/4th टर्म। चलो वंश का पार्टनर, वंश का पार्टनर ध्रुव, 3.25th टर्म। चलो ध्रुव बोलता है सर मैंने डिवाइड किया और 3.25 आ रहा है, जरा चेक करो ध्रुव बराबर बोल रहा है क्या? 3.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलो ध्रुव ने बराबर काम किया है। चलो ध्रुव का पार्टनर निर्मय, हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म आ गया प्लस, थर्ड टर्म आ गया प्लस 0.25, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। यस दैट इज द करेक्ट वे, निर्मय ना?
हाँ, सो निर्मय ने करेक्ट किया है। तो बोल रहा है थर्ड टर्म प्लस 0.25 एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑफ व्हाट, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। जरा चेक करो कौन है थर्ड टर्म, कौन है फोर्थ टर्म। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। थर्ड इज 190, फोर्थ इज 195। हाँ बोलो निर्मय। प्लस 195 माइनस 190। चलो नेबर, निर्मय का पार्टनर बोलो। हाँ 0.25 इंटू 5 बराबर बोल रहा है। तो पहला क्या करेंगे हम, 190 प्लस बोलता है मल्टीप्लाई कर दो 25 टू 12, 2 डेसिमल, सो 1.25। तो क्या आ जाएगा आंसर, 191.25 आया बराबर। yes or no, is it the final answer? this is not the final answer। आंसर कैसे लिखने का रहता है, हाँ तो नीचे क्वेश्चन के हिसाब से लिख देने का। therefore electricity consumption below which 25% of families lie is what, 191.25 units, 191.25 यूनिट्स। कैसा समझ में आ रहा है आप सबको, कुछ डाउट? प्रैक्टिकल में कैसा कन्वर्ट किया क्वेश्चन मालूम पड़ा क्या वो लोग ने? क्वेश्चन में बोला था Q1 कि हमने दिमाग लगाया? हाँ तो बोलने का बराबर। रेडी, प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनीथिंग टू बी रिपीटेड, नथिंग, क्लियर? चलो फाइन। एंड होमवर्क एक करके आएगा, एक क्वेश्चन, आवाज ही चला गया, एक क्वेश्चन करके आएगा कि नहीं? हाँ तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का फर्स्ट कर दो, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर दो। ओके चलो बाय, थैंक यू। अच्छा आंसर दिया है पीछे, तो यू कैन कंफर्म आपका आंसर बराबर है कि नहीं। लास्ट में आंसर दिया है तो यू कैन चेक कि आपने सही किया है कि नहीं। ओके चलो बाय बाय, थैंक यू।